हेलो एवरीवन, दिस इज मी एसवी एजुकेशन और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी का एमएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस। आइए देखते हैं एमएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस। इसमें भी 5 पेपर होंगे हमारे। MBT 201 जिम्नोस्पर्म एंड पैलेबॉटनी, MBT 202 एंजियोस्पर्म्स टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रायोलॉजी, MBT 203 प्लांट फिजियोलॉजी, MBT 204 है सोशल आउटरीच एंड स्किल डेवलपमेंट, MBT 205 इलेक्टिव पेपर है जिसमें 2 पेपर दिए गए हैं। इसमें आपके कॉलेज में आपके प्रोफेसर कुछ भी चूज करके पढ़ा सकते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन और इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल LBT 211 ये जो प्रैक्टिकल है ये बेस्ड होगा MBT 201 और MBT 202 का, और सेकंड प्रैक्टिकल बेस्ड होगा MBT 203 और MBT 205 का। तो ऑल टुगेदर हमें 5 थ्योरी पेपर और 2 प्रैक्टिकल पेपर के एग्जाम्स देने होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। MBT 201 ये है जिम्नोस्पर्म एंड पैलेबॉटनी। यूनिट 1 जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स साइलेंट फीचर्स, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज विद other groups like pteridophytes and angiosperms, classifications of gymnosperm, origin and evolution of gymnosperm with special reference to progymnosperms, Devonian pre-ovules and origin of seed. Unit 2 है comparative morphology, anatomy, reproductive biology and phylogenetic studies of the following groups. Pteridospermopsida के अंदर पढ़ना है Laginopteridales, Medullosales, Callistophylales, Glossopteridales, Peltaspermales, Corystospermales and Calitonales. Next है Cycadopsida, Pentozylopsida, Bennettopsida, Gingopsida, Coniferopsida and Nitopsida. यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन प्लांट्स, endangered gymnosperms, their conservation and present status, cytogenetics of gymnosperms, economic importance and biotechnology of gymnosperms. Unit 4 है basic geological information, structure of earth, types of rocks, stratigraphy, basic concept of continental drift and plate tectonics, dating the past, geological time scale, fossilization process, types of fossils including chemical fossils and fossil techniques to study fossils, reconstruction and nomenclature of fossil, concept of parataxa and eutaxa, objectives of palebotany, prebiotic environment, chemical evolution and origin of life, Precambrian life, Indian Precambrian stratigraphy and life forms. And unit 5 है applied palebotany, life as fuel maker, sources of natural fossil fuels, peat, coal and its varieties, constitution of coal, coal palynology, coal mackerel, petroleum के अंदर पढ़ेंगे इसका origin, palynology in oil exploration, fundamentals of paleofloristics, paleogeography and paleoclimatology, application of palynology, plant and animal interaction, correlation, archaeobotany with special reference to phytoliths and palynological studies. ये था MBT 201 का सिलेबस। नेक्स्ट चलते हैं MBT 202। MBT 202 हमारा सेकेंड पेपर है जिसका नाम है एंजियोस्पर्म्स टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रायोलॉजी। This course is aimed towards generating fundamental knowledge, concepts and dimensions of identification, importance and applications of higher plants. Unit 1 के अंदर आएगा taxonomic principle, botanical nomenclature, binomial system, ICBN rules and recommendation, priority typification, rules of effective and valid publication, outline of classification proposed by Bentham and Hooker and Hutchinson.
तक, टार्जन एंड क्रॉन्क्विस्ट। यूनिट 2 के अंदर आएगा टेक्सोनॉमिक फीचर्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज: मैग्नोलिएसी, रेननकुलेसी, पेपरवेसी, कैपिरिडेसी, ब्रेसिकेसी, कैरियोफाइलेसी, मालवेसी, रुटेसी, मेलिएसी, लेग्यूमिनोसी, रोजेसी, कॉम्ब्रेटिकेसी, कुकुरबिटेसी, अम्बलीफेरे, रुबिएसी, एस्ट्रेसी, एस्क्लेपिडेसी, एपोसाइनेसी, कॉन्वोलेसी, सोलेनेसी, स्क्रोफुलेरेसी, एकेंथेसी, लेमिएसी, वेबरेसी, पॉलीगोनेसी, यूफोर्बिएसी, ऑर्किडेसी, जिंजरबिरेसी, एचरेसी, लिलिएसी, सैपरेसी एंड पोएसी। यूनिट 3 के अंदर आएगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, कीमोटैक्सोनॉमी, रोल्स ऑफ फाइटोकेमिकल एंड टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड साइटोलॉजी इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी। यूनिट 4 के अंदर पढ़ना है हमने स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, एंथर एंड माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस, पोलन वॉल फीचर, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोरेंजियम के अंदर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, मेगास्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो, सेक्स, पॉलिनेशन के अंदर पढ़ेंगे डेफिनेशन, टाइप्स एंड एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, pollen pistil interaction, fertilization and double fertilization, endosperm types and development, embryology, sexual incompatibility। यूनिट 5 के अंदर आएगा एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रायोलॉजी, टिश्यू कल्चर, एपोमिक्सिस, हैप्लॉइड प्रोडक्शन, एंड्रोजेनेसिस, गायनोजेनेसिस, एम्ब्रायो कल्चर, ओव्यूलन सीड कल्चर, पार्थेनोकार्पी, सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन। ये था एमबीटी 202 का सिलेबस। नेक्स्ट चलते हैं एमबीटी 203 में। हमारा एमबीटी 203 यानी थर्ड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी का, जिसके अंदर यूनिट 1 में हमने पढ़ना है वाटर रिलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, डिफेक्ट absorption of water and minerals, mechanism of water and mineral absorption, phloem transport, loading and unloading of phosphatase, theories of phloem transport। यूनिट 2 के अंदर आएगा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जेड स्कीम, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, कार्बन एसिमिलेशन पाथवे, C3, C4, कैम एंड फोटो रेस्पिरेशन। यूनिट 3 के अंदर आएगा रेस्पिरेशन, जिसमें हमने पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, ETS, ATP सिंथेसिस, पेंटोज फॉस्फेटेज पाथवे, अल्टरनेट ऑक्सीडेज सिस्टम। यूनिट 4 के अंदर आएगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन A, BA, एथिलीन एंड ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, हार्मोन रिसेप्टर, सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड जीन एक्सप्रेशन। यूनिट 5 के अंदर आएगा सेंसरी फोटोबायोलॉजी, जिसमें हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम एंड फोटोट्रोपिन, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ फाइटोक्रोम एक्शन एंड द फ्लावरिंग प्रोसेस, photoperiodism and significance, endogenous clock and regulation, flowering stimulus, florigen concept and vernalization। ये था एमबीटी 203 का सिलेबस। नेक्स्ट है एमबीटी 204 जो कि है सोशल आउटरीच एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये आपके प्रोफेसर डिसाइड करेंगे कि आपको किस टॉपिक पे सोशल आउटरीच एंड स्किल डेवलपमेंट उनको कराना है। नेक्स्ट है हमारा 5th पेपर, जो कि एक इलेक्टिव पेपर है। तो इसमें फर्स्ट पेपर दिया गया है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। यूनिट 1 है गैसियस एंड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, इंडोर एयर पॉल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट्स ऑन प्लांट, ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। Unit 2 is photochemical smog, stratospheric ozone depletion, effects of enhanced UVB on plant microbes and human health, acid rain formation, depression, dispersion and deposition, consequences of soil fertility, rivers, lakes and ponds। यूनिट 3 में आएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें हमने पढ़ना है consequences ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज, एल्बेडो, ओसेनिक इन्फ्लुएंसेस, इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन प्लांट्स, ह्यूमन इम्प्लीकेशन, सरफेस कूलिंग। यूनिट 4 में आएगा सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, फिजिको केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीवेज, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस,
produced from textile, leather, thermal power, chemical and mining industries and their effects on water quality, bio-indication of water pollution. Unit 5 is biodiversity. Definition, magnitude and global patterns of biodiversity, hypothesis related to global patterns of biodiversity, regional pattern of biodiversity, biodiversity of hotspots, threats and biodiversity, extinction of species, IUCN Red List category, conservation status, ex situ and in situ conservation, India's biodiversity and conservation. तो ये MBT 205 का एक्टिव पेपर का एक पेपर का सिलेबस है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका सेकंड पेपर क्या है। MBT 205 B02, तो ये पेपर है हमारा इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी का। यूनिट 1 में आएगा इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल टर्मिनोलॉजी, पॉपुलेशन डायनामिक्स, population characteristics, population growth forms, density dependent and density independent control, population structure, energy partitioning, R and K selection, concept of carrying capacity, wildlife sanctuaries, botanical gardens. Unit 2 is vegetation, organization and characteristics, concepts of community and continuum, community coefficients, interspecific association, coordination, ordination, ecological niches, species diversity, alpha, beta, gamma. यूनिट 3 में आएगा इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन, एनर्जी फ्लो पाथवेज, इकोलॉजिकल कोफिशिएंट्स, मैकेनिज्म ऑफ डिपोजिशन एंड इट्स कंट्रोल, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन इकोसिस्टम, यूट्रोफिकेशन एंड बीओटी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। 4th यूनिट में आएगा इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, इकोलॉजिकल permutation and their impact on plants and ecosystem, plant invasion, ecological succession में पढ़ना है हमें modes of mechanism and Xeras and Hydrarch. Unit 5 में आएगा phytogeography, definition and scope, endemism, factors governing distribution of plant, phytogeographical region of India, plants to Indian subcontinent and major biome. तो ये हमारा पूरा था MBT 20, मतलब ये था MSc सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस, MSc सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस। तो आपके ये जो PDF है ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ये था हमारा MSc सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस। इसके जो PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद।